We start with welcoming. To welcome our chief guest, Ms. Sunita, to please welcome sir with a bouquet. Sunita ma'am. I request Sunita ma'am to welcome Sudhir sir. Thank you, ma'am. As students, we hardly need any introduction to one who has been our guiding light and mentor. Sarang sir's name is synonymous with excellence, innovation, and unshakable commitment to our success. Sarang Upagandlava sir, the visionary founder, CEO of ICAD, has redefined education landscape with over 2 decades of dedicated service. As the only entrepreneur to simplify the intricate journey of JEE and NEET aspirants, he has designed groundbreaking scientific foundation program to shape young minds from an early class 8. Renowned for his innovative products and process, Sarang sir is consistently ahead of the curve, establishing ICAD as a leader in the education sector. A celebrated TEDx speaker, a global influencer, his leadership has propelled ICAD into world stage, earning acclaim through a prestigious case study published by Case Center, the world-leading repository. Sarang sir's core belief that every child is unique drives him personally to reach out to the last child, ensuring no one is left behind. Under his unparalleled business acumen, ICAD is now expanding its footprints to Nanded, Nashik, and Aurangabad, further solidifying its presence as a trusted name in education. Sarang sir's relentless pursuit of excellence continues to inspire and empower students across the globe. Sarang sir is only entrepreneur in the Nagpur who has himself cracked all competitive exams and merit in his school and university student life. He is the only mentor in Nagpur to have skills and to guide students for techniques to score maximum in competitive exams like JEE and NEET on crucial exam day. On this note, I request Sarang sir to please guide our students and to start the session. Thank you. Good morning. What is the purpose of today's session? बहुत गलतियाँ होने वाली है. हर कोई गलती करने वाला है. And what exactly the purpose of today's session, where we want to stop those mistakes to happen or from happening. है ना, अभी 1-1.5 महीना बाकी है. नीट के जो स्टूडेंट है उनके लिए तो ज़्यादा टाइम बाकी है, लेकिन उनका भी क्रूशियल टाइम स्टार्ट हो चुका है. एग्ज़ाम आएंगी जनवरी में JEE स्टूडेंट्स की, और एक एग्ज़ाम का दिन भी रहेगा, जब ये पूरी 2 साल की मेहनत एक दिन में हम पेपर देंगे. स्ट्रेस में भी रहेंगे, टेंशन में भी रहेंगे, और अगर स्टेबल नहीं रहेंगे तो मिस्टेक भी करेंगे. आज के सेशन में हम जितने भी हमारे टॉप रैंकर्स थे, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस है 2004 से लेके तो अभी 2024 तक, तो जो भी लड़कों ने गलतियां की वो गलतियां हम आज डिस्कस कर रहे हैं. एंड पर्पस सिंपल है कि वो गलतियां आप ना करो. नाउ द क्वेश्चन इज, हु इज द विनर? JEE एग्जाम होगी, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलोगे, अब आप उसमें खुश रहते हो या फ्रस्ट्रेटेड रहते हो? बहुत ही ऐसा कोई सेशन पहले हुआ नहीं करता था, यानी 2014 के पहले तो नहीं हुआ करता था, और बाद में ध्यान में आने लग गया कि एक बार ऐसा हो गया कि JEE मेंस सब लड़कों ने दी, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी सिर्फ टॉप रैंक्स नहीं होते. नहीं तो 2014 में तो नागपुर के पहले 5 में से पहला, सेकंड, 4th एंड 5th ये तो अपने ही थे, लेकिन जो नंबर्स, टोटल नंबर जो एक्सपेक्ट किए गए थे वो आए नहीं. अक्रॉस सभी सेंटर, तब 2-3 ही सेंटर हुआ करते थे, सभी बच्चों से मिला गया एग्जैक्टली भैया किया क्या है तुमने, पूरे टेक्निक्स वगैरह सब भूल गए बच्चे. जबरदस्त गेसिंग करके आए थे, जबरदस्त नेगेटिव हो चुके थे, और जो स्कोर आना चाहिए था वो नहीं आया था. किसी को ऐसा लगता है यार मेरे को शायद BC मार्क मिल रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने गेसिंग किया क्या, मैंने गलतियाँ किया क्या, मैंने नहीं किया क्या. उसकी भी जर्नी अपन देखेंगे, उसकी भी सक्सेस जर्नी अपन देखेंगे, और वो अगर बंदा सक्सेसफुल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी बच्चे सक्सेसफुल होंगे. तो कमिंग डाउन टू द
मेन सेशन. हु विल बी द विनर? एंड विनर इज गोइंग टू बी द वन. क्या वो विनर रहेगा जो जिसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आया? क्या वो विनर रहेगा मुझे 300 में से 200 मार्क आता है, मैंने 225 मार्क का सॉल्व कराया, 250 मार्क का सॉल्व करके आया? वो होने वाला ही नहीं है. विनर इज द वन जिसको जितने आते थे क्वेश्चंस उसने वो 100% एक्यूरेटली सॉल्व करना. दैट इज द विनर. ही इज गोइंग टू बी द विनर और शी इज गोइंग टू बी द विनर. और अभी अगर आप अपनी टेस्ट देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा है. एवरीबॉडी इज लूजिंग. आज आपका टेस्ट पेपर लो जो भी होता है एंड सी यू विल फाइंड दैट कि यार और 30-40 मार्क आ सकते थे. यहाँ पे बैठा होता हर बंदा और 30-40 मार्क आ सकते थे. अभी कल नीट के सेंटर पे थे. आई एम गेटिंग 625, आई एम गेटिंग 600 और समथिंग लाइक दैट. पता चलता है और 70-80 मार्क आ सकते थे. What exactly is we are trying to do in this 1 or 1.5 month? What not only we are trying to revise and increase our score, we are also trying to minimize the leakage. और लीकेज अगर 0 मार्क का रह गए तो उससे अच्छी बात नहीं है. I think you are getting the point and purpose of the two sessions. So winner of the examination day will be the students who can solve all the questions right. They are 100% confident. Winner will be the one. एक नीट के लड़की का एग्जाम्पल दूंगा जो पिछले साल उसने नीट दिया. 720 में से पूरे 720 मार्क का आता था. जो नीट के बच्चे यहाँ पे है हेड ऑफिस में, शायद वो लड़की को जानते भी है. पूरा 720 में से 720 मार्क का आता था. उसने पेपर कंप्लीट किया 2 घंटे में. क्या हो गया? डर गई वो. पूरा सुपर एक्सप्रेस शुरू हो गई. पूरे 720 मार्क का सॉल्व कर लिया, 2 घंटे में सॉल्व कर लिया. बस बॉस ऐसा थोड़ी ना सॉल्व करना है. हमको तो पूरे 3 घंटे लेने हैं. हमको तो हर क्वेश्चन क्रॉस चेक करना है. हमको तो कूल टेम्परामेंट के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है और पूरे 720 में से 720 लेना है. इतना इजी है क्या फाइनल एग्जामिनेशन का प्रेशर? So these are the two things that we are supposed to exercise for these 40 days. और ये प्रॉपर ऑफ टाइम है जिसमें ये सेशन लिया जाता है ताकि ये 40 दिन में आप चीज़ें एक्सरसाइज करो आपके रूटीन लाइफ में और एक्चुअल एग्जामिनेशन में. Everybody who is sitting over here, whether it is who is the student of JEE or NEET, मैं इतना ही बता दूंगा हर बंदा सक्सेसफुल होने वाला लाइफ में. मजाक नहीं. JEE का 1.5-2 साल का प्रोग्राम कंप्लीट करना एंड यू आर डन दैट. और कैसे सक्सेसफुल होना? जब अपन ने 20 मार्क वाले की सक्सेस जर्नी देखेंगे ना तब आपको ध्यान में आएगा. सो नाउ योर स्टडी पार्ट इज ओवर. इट इज द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड नाउ यू गॉट टू वर्क प्रोफेशनली एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ. सो नाउ हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई. जितनी होनी चाहिए थी हो गई. किसी की भी 100% होती नहीं है. किसी की 95% होंगी, किसी की 80% होगी, किसी की 60% होगी, किसी के शायद 20-25% ही होगी. ये हो गई है. नाउ वी आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट सो दैट वी कैन स्कोर बेटर. सेशन में हमेशा ऐसा होगा, यार ये तो मालूम है, और बार बार बता जाएंगे एक ही बात. हमको सिर्फ इतना देख रहे हैं मालूम है यार, एग्जाम टेक्निक मालूम है, स्किपिंग करना है मालूम है, कौन से टाइप के स्किपिंग से ये मालूम है, 45 मिनट साइकिल फॉलो करना है मालूम है, क्रॉस चेक करना है मालूम है. पूछना यह है कि एम आई प्रैक्टिसिंग इट. मैं प्रैक्टिस कर रहा क्या? सिर्फ मालूम है मेरे को. कूल टेम्परामेंट रखना मालूम है, लेकिन कूल टेम्परामेंट मेरा ऑब्जर्व हो रहा है क्या डेली लाइफ में भी और एग्जामिनेशन में भी? कि रोज चिड़चिड़ी हो रही है. तो एक एक्सपीरियंस है कि पहले जब आप आरटी से निकलते एफटीएसएम में आते हो या एफटीएसएन में आते हो नीट में, आपका स्कोर ड्रास्टिकली कम होता है. और 5-10 टेस्ट के बाद प्रॉपर ग्रेजुअली उतने स्टेज पे आता है जो आपका वेटेड एवरेज रह चुका है अक्टूबर एंड तक, वो वेटेड एवरेज पे अपना एफटीएसएम आता है. और उसके बाद ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स बढ़ते हैं, जो पिछला डेटा बताता है कि जो भी वेटेड एवरेज है उससे +30 मार्क ये 2-3 महीने में होते हैं. और अगर मैं नीट के बच्चों की बात करूं तो 100 से 150 मार्क अभी बढ़ेंगे, ज़्यादा भी बढ़ सकता है. और शायद टॉप रैंकर 50-60 मार्क भी बढ़ाएंगे या तो उससे ज़्यादा बढ़ाएगा. और शायद टॉप रैंकर वहाँ तक पहुँचेगा कि उसको 300 में से 300 मार्क का आता है. अब क्वेश्चन तो ये है ना यार, पिछले साल भी तो आदित्य यादव को तो 300 में से 300 मार्क का आता था ना, लेकिन 2 तो सिली मिस्टेक मारी गए ना, 290 तो आई गए ना.
सो द इशू इज कि एवरी सिंगल मिस्टेक विल कॉस्ट। तो अभी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा जिस हिसाब से तुम्हारी स्टडीज है। दूसरा, देयर वाज वन नीट स्टूडेंट लाहिरी बद्दू, शी वाज द नीट सेकंड रैंकर ऑफ विदर्भा। अब कैसा होता है कि वो ज़माना ऐसा था कि जब भी नीट का सेकंड रैंकर आता था या जय शुरकुड़े आया था एम्स का सेकंड रैंकर, तो उसका तो यार लॉटरी है, कभी कभी हो जाता होगा। आई कैट की सिस्टम तगड़ी है, कभी कभी नहीं होता है। और लाहौरी बुद्धि के वक्त और एक लड़की थी सेंटर पॉइंट की टॉपर थी जो सुहानी जैन, दोनों में कंपटीशन थी, राइट। सुहानी जैन हमेशा सामने रहती थी, आगे रहती थी लाहिरी के। लेकिन जब उसके लाहिरी के टेस्ट पेपर एनालाइज किए गए तो ध्यान में ये आ गया कि बहुत सारी चीज़ें उसकी छुटी हुई है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो दो चार चीज़ें उसकी जो दो चार टॉपिक बराबर नहीं होंगे और वॉट एवर इट इज़, अगर ये प्रॉपर कर लेती है तो ये फिर बहुत आगे जाएगी। उस वक्त आउट ऑफ 720 600 के ऊपर मार्क लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो सुहानी बेयरली क्रॉस 600 मार्क, गॉट इन टू JJ मुंबई। कमिंग डाउन टू द लाहिरी, शी गॉट, हमको नहीं लगा, हमको लगा 610 620, इतना तो मालूम था ये टॉप करेगी ICAT से, 610 620 आएंगी। लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो अगर मैं एग्जाम के 3 महीने पहले भी उसको मिलता तो उसका मेंटल स्टेबिलिटी एकदम जबरदस्त था। शी गॉट व्हुपिंग 644, शी वॉज द विदर्भ सेकंड रैंकर, शी गॉट इन टू AFMC पुणे, सोनी गॉट इन टू JJ। लेकिन स्कोर 644 इज अनइमेजिनेबल फॉर अस। जो भी लड़के यहाँ पे है, टॉप रैंकर्स होंगे, लो रैंकर्स होंगे, हम अगर शांत रह गए उस दिन या हमने वो अगर प्रैक्टिस कर लिया अभी से तो लूज नहीं करेंगे। जितना हम एजिटेटेड रहेंगे उतना हम लूज करेंगे, इतना ध्यान में रखना। और जितना अपन शांत रहेंगे उतना अपन लेके आएंगे, इतना भी ध्यान में रखना। बहुत लोग घर में बैठते हैं, आज भी बैठे होंगे, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि अभी तो फिनिशिंग हो आ रहा है। घर में बैठते क्या मिलेगा जाके, सारंग सर वही बताने वाले जो अभी तक बताया है। लेकिन मैं तो बोलूँगा जब भी आप यहाँ पे हो, आप इंजीनियरिंग में जाओगे, कहीं भी जाओगे या डॉक्टर बनोगे, आपके वर्कशॉप्स रहेंगे आपके, यार आपको जाना ही पड़ेगा। यार एक बहुत बड़ा स्पीकर आ रहा है, उसका सेमिनार है, यार उसको तो यूट्यूब पे सुन ही लेता हूँ, मैंने जाना पड़ेगा, जाना ही चाहिए। तो एग्ज़ाम चालू है, बच्चे लोग बैठे, 40 पेपर हो रहे हैं, मैं 40 पेपर क्यों दूँ, 10 टेस्ट में होता था यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जितने ज़्यादा टेस्ट दूंगा एग्ज़ाम प्रेशर वैसे ही कम होता है। ये भी तो मशीन लर्निंग समान है कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रहे हैं, यार ये गलती हो रही, ये गलती हो रही, बाद में मैं अपने आप ट्रेंड हो रहा हूँ कि अगली बार वो गलती ना करूँ। बार बार वो ध्यान में आ रहा है मेरे कि ये गलती हो रही, ये गलती हो गई। बार बार टेस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, यार ये गलती पिछले पेपर में भी हुई थी, फिर से हो गई, अभी नहीं होने चाहिए। एन नंबर ऑफ थिंग्स मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं वो 30-40 पेपर्स के बाद मैं ज़बरदस्त ट्रेन हो जाऊँगा ताकि मैं एग्ज़ाम में गलती नहीं करूँगा। क्या होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, तो एक्सपीरियंस अनट्रेंड अनप्रोफेशनल गाइज, यानी बॉस मैंने सब पूरी क्लासेस लगा ली, ट्यूशन क्लासेस लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, पढ़ाई कर ली, टेस्ट कम दिए और आगे टेस्ट देने के लिए। तो उसके साथ क्या होता है, दे एंड अप गिविंग इन टू द एग्जामिनेशन प्रेशर। आप आपके टेस्ट सेंटर पे जा रहे हो, 2-4 हज़ार लड़के आजू बाजू दिख रहे हैं, सबके पेरेंट्स आए हुए छोड़ने के लिए, अलग ही एग्जामिनेशन प्रेशर का माहौल बन गया है। ये लोग इतना बड़ा एग्जामिनेशन है ना, 2-2 3-3 4-4 हज़ार देख के डर जाते, बस कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। And they commit more mistake, they give into the examination pressure, they solve more questions because they are under pressure. Commit more silly mistakes, होने वाले हैं silly mistake के genuine mistake भी, and frustration, they end up in the frustration. मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, winner will be कि आप एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर निकल रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या आपको लग रहा है परफेक्ट कर लिया। ये पूरे लोग फ्रस्ट्रेशन की कैटेगरी, यार पेपर बिगड़ गया, बिगड़ना ही था, तुम एग्जामिनेशन प्रेशर में आ गए, बिकॉज यू आर नॉट अनट्रेंड, यू आर नॉट ट्रेंड फॉर एग्जामिनेशंस। एंड आई एम ग्लैड टू से दैट ऑल ऑफ यू पीपल सिटिंग ओवर हियर आर परफेक्टली ट्रेंड। यू आर ट्रेन फॉर कैट, यू आर ट्रेन फॉर RT, एंड RT आखिरी का देते देते तुम पूरे सिलेबस पे टेस्ट देने के लिए ट्रेंड हो। और अभी FTSM या FTSN जो चल रहा है तो वो ट्रेनिंग कंटिन्यूड है।
Now imagine you guys at the examination center, what will happen with you? You come as if it is routine for you. मालूम है कुछ ज़्यादा चमत्कार नहीं होने वाला है, जितना आता है उतना सॉल्व करके आना है. कोई एग्जामिनेशन प्रेशर नहीं है. 2-4 हज़ार लोग हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 लाख लोग दे रहे हैं. और आपको भी मालूम है 10 लाख में से ज़्यादा 125 लोग 90 मार्क, 1,25,000 लोग 90 मार्क से ज़्यादा लेंगे. ज़्यादातर ज़्यादा लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, ज़्यादा सिर्फ फॉर्म भरा है. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पे आए हैं, अगर वो ICAT के नहीं हैं तो वो प्रोफेशनली ट्रेंड भी नहीं है. सो what exactly you are supposed to do, that you are supposed to be confident because I am the best at the examination center. So they have their strategies well practiced and ready. They change their strategies. They don't change their strategies at the last hour. And lastly and most importantly, they end up solving only those questions they are 100% confident of. For example, जिसको 75 क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे 75 क्वेश्चंस राइट सॉल्व करके आए. जिसको सिर्फ 10 क्वेश्चंस आते हैं तो वो सिर्फ 10 क्वेश्चंस राइट सॉल्व करके आए. और जब वो 10 क्वेश्चंस वाला भी बाहर निकलेगा तो ये बोलेगा बॉस पेपर अच्छा गया, क्योंकि भाई मेरी कैपेसिटी 10 क्वेश्चन की थी, मैं वो राइट करके आया, दैट्स ऑल. लेकिन मेरी कैपेसिटी 10 क्वेश्चन की थी और मैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा हूँ, तो फ्रस्ट्रेशन में ही रहेगा, क्या क्यों किया. सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ यू. पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो ही जाएगा आपके FTSM में, मालूम पड़ेगा कुछ होता नहीं है. अपने को जितना आता उतना राइट सॉल्व करो, बस उतना कॉन्सेंट्रेशन रखो. सो सम स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज. प्रणव 1999 में ICAT शुरू हुआ. वी यूज टू ट्रेन फॉर GRE, GMAT, SAT एंड ROFEL. तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ही है. प्रणव का स्कोर आता था आउट ऑफ 2400 उसका 1600, 1700 के आसपास स्कोर आता था. जब टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो उसको सिंपल इतना ही बोला गया, भैया 1800 तक पहुंचा, इतना भी आ गया 1700-1800 तो बस अच्छी यूनिवर्सिटी में तेरी एडमिशन हो जाती. और एक टिप प्रणव को दी गई थी कि भैया एग्जामिनेशन के दिन पढ़ाई नहीं करना है. प्रणव नागपुर से बॉम्बे गया. ट्रेन में सभी दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे, बॉम्बे सेंटर था. ट्रेन में सभी दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे, ये अपना बढ़िया सो रहा है, क्योंकि क्लियर था कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, अभी हो गया तेरी पढ़ाई जितनी हो गई. और तूने 1700-1800 भी लाया तो वेरी इनफ फॉर. बढ़िया सो रहा है. सेंटर पे गया, पुणे का एक लड़का सेंटर पे था, उसके होशियार लड़का था, पढ़ाई कर रहा था. उसने पूछ लिया उसको, भैया क्या स्कोर आ रहा है, तो उसने बताया 2100 के आसपास स्कोर आता है. प्रणव सोच रहे भाई 2100 आ रहा है फिर भी पढ़ रहा है, तो बोले व्हाट एग्जैक्टली यू आर टारगेटिंग. तो उसने बोला कि यार इफ आई गेट 2200 टुडे इट विल बी फंटास्टिक. प्रणव ने टेस्ट सॉल्व की अपनी. अनएक्सपेक्टेडली 1950 का स्कोर आया, कि हमने तो ये सोचा था कि 1800 आ गया, 1850 आ गया तो मोर देन इनफ. अनएक्सपेक्टेडली 1950 का स्कोर है. उसका इतना ही टारगेट था जितने आते प्रॉपरली एक्यूरेट करना है, बस दैट्स ऑल. बाहर निकला, यार मेरा 100 मार्क्स से बढ़ सकता तो इसका भी बढ़ गया होगा. उसको पूछा भाई कैसा गया, एंड ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड. जो दूसरा बंदा था ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड. क्या बोला उसने, यार पता नहीं समथिंग रॉन्ग हैपन. पहला सेक्शन मेरा बिगड़ गया, पहला सेक्शन बिगड़ गया तो उसके फ्रस्ट्रेशन में सेकंड सेक्शन बिगड़ गया, सेकंड सेक्शन बिगड़ गया तो उसके फ्रस्ट्रेशन में थर्ड सेक्शन तो मेरा अटेम्प्ट ही नहीं किया, एंड आई लैंड अप एट 1700. दो चीज़ें थी, एक तो कोई ज़रूरत नहीं है आखिरी दिन वक्त तक पढ़ाई करने की. आप सबको पहले दिन आपके सेंटर हेड्स बुलाएंगे, कोई पढ़ाई वढ़ाई की बातें नहीं होंगी. समोसा कचौरी स्नैक्स वैक्स खिलाए जाएंगे, थोड़े हेल्दी स्नैक्स खिलाए जाएंगे, चिल किया जाएगा. जानते ये बताया जाएगा कि भैया 6 बजे के बाद पढ़ाई बंद करनी है. और जो पढ़ाई करता है 6 बजे के बाद, अपने 2 साल में क्या कर लिया, जो अभी 6 बजे के बाद पढ़ाई करके होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला. इमेजिन कि मैं 6 बजे के बाद पढ़ाई करता हूँ, रात के 2 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, सुबह उठता हूँ और एग्जाम को जाता हूँ. इमेजिन माई एनर्जी लेवल, इमेजिन माई बॉडी टेम्परेचर, इमेजिन द हीट आई एम फीलिंग इन द बॉडी. ये इमेजिन कि मैंने दिन मस्त तो सोया, 9 बजे सो गया, बढ़िया 5-6 बजे उठा आराम से. इमेजिन द फ्रेशनेस. यवतमाल की लड़की जैसे ही अपना बोर्ड एग्जाम, तब JEE मेन हुआ करती थी अप्रैल में, जनवरी का कोई अटेम्प्ट था नहीं. बोर्ड एग्जामिनेशन हो गई. हमारा टारगेट क्या रहता है मालूम है क्या आप सबको? ये सभी सेंटर हेड्स, सभी फैकल्टी मेंबर्स का टारगेट क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लड़के एग्जाम में आने को ना. FTSM में जितने ज़्यादा लड़के FTSM में आएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता. और जो घर में बैठ गया उसका रिजल्ट नहीं आता. एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं.
तो ऑब्वियसली सब जन लग गए फोन करने में, ट्रैक करने में कि भैया कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अब ये लड़की नहीं है, ये टॉप रैंकर थी, तब 360 का स्कोर हुआ करता था, तो 360 में से ये 200 मार्क तो आराम से क्रॉस करते थे। उसको फ़ोन किया तो उसकी मम्मी ने उठाया, सर मैंने ती अभ्यास करता है। ओके, फ़ोन मैंने ही किया क्योंकि मेरे रिलेटिव थे, तो बोले ती अभ्यास करता है, म्हटलं तुम्ही चिंता नका करू सर म्हणे, तिचं असंच आहे म्हणे, ती टेस्टला नाही येणार म्हणे, पण ती रोज 12-12 तास अभ्यास करून राहिली। ओके, मैं बोला आ जाओ पहले, बुलाया तो बच्ची ने बोला कि मैं 10th के वक्त भी ऐसे ही किया, आखिरी 20-25 दिन मैंने 12-12, 15 घंटे पढ़ाई किया, 97% मार्क लाए। मैं बोला भाई वो बोर्ड था, ये जेई है, यहाँ पे आखिरी दिन तक आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। अच्छा तू एक काम कर, कल की टेस्ट दे, तेरे को मालूम पड़ेगा तो क्या हो रहा है। और मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि अगर ये कल की टेस्ट देती है तो इसको पता चल जाएगा कि वो कितने पीछे चलेगी बाकी बच्चों से, और ये बराबर ट्रैक पे आएगी। लेकिन ये बच्ची ने टेस्ट ही नहीं दी। दूसरे दिन जेई मेन हुई, जो होना था वो हुआ, 80 मार्क्स आए उसको जेई मेन में आउट ऑफ 360। कहीं पुणे में एडमिशन लिया, बात अलग है, बट यार तू श्योर शॉट IIT की लड़की थी, कम से कम NIT कंप्यूटर साइंस मिलता ही था। और एक क्रूशियल मिस्टेक, बहुत सारे मिस्टेक अभी गिनाने वाला हूँ जिसमें शायद एक हाथ मिस्टेक आप करोगे, और मैं तो चाहता हूँ आप एक भी मिस्टेक ना करो। सो अपीयर फॉर ऑल द मार्क टेस्ट एंड डेवलप योर सेल्फ विथ ईच स्टेप कॉन्शियसली, जो मैं मशीन लर्निंग की बात किया। मैं टेस्ट हो गई, 300 में से मुझे 160, 180 मार्क मिलते थे, अभी 110 ही मिले। तो कोई फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, 160 का नॉलेज है, कोई जाने वाला नहीं है। आपने उसे अच्छा 110 मिलेगा भाई, 50-60 मार्क मेरे गए का, और 20-30 मार्क तो बढ़ने वाले भी है, यानी 160 का 190 तो मिनिमम होना है, लेकिन अभी 110 मिले हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू टारगेट कि भैया जो 80 मार्क है उसका क्या। तो आराम से मैं देखूंगा यार ये 30-40 मार्क मेरे यहाँ चले गए, शायद ये टॉपिक्स बराबर रिवाइज नहीं हुए हैं, ये 2-4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर देने चाहिए थे, फालतू टाइम गया इसमें। बहुत कुछ आता ध्यान में, पेपर देखने के बाद बार बार देखने के बाद क्या हो रहा है, मेरा भी तो मशीन लर्निंग हो रहा है। फिर अगली टेस्ट देता हूँ, शायद 10-20 मार्क बढ़ जाए। यही करना है 30-40 टेस्ट, पढ़ाई करना है। पढ़ाई कौन करना है ये बताएगा कौन, और पढ़ाई क्या करना है ये बताएगा कौन, तो तुम्हारी टेस्ट ही बताएंगी। भाई एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, स्किपिंग परफेक्ट करनी पड़ेगी। ये टॉपिक का क्वेश्चन मुझे बाद में क्लिक हुआ, एग्जाम के बाद में क्लिक हुआ, यानी उसको भी रिवाइज करना पड़ेगा, उस पर भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बाद में क्लिक हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रैक्टिस लगेगी भाई। 3 जोन है, ग्रीन येलो रेड। ग्रीन मीन्स फटाफट क्लिक हो रहा है, आंसर आ रहा है आपको, येलो मीन्स बाद में क्लिक हो रहा है, रेड मीन्स नहीं आ रहा है। फिर ये येलो भी तो ग्रीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी तो प्रैक्टिस लगेगी, तो वो एक्शन प्लान लिखा जाता है। सो अपीयर फॉर ऑल द टेस्ट, मोर नॉलेज डजंट मीन मोर मार्क्स। मुझे 250 मार्क का नॉलेज है, लेकिन मैं 200 मार्क ला रहा हूँ। मुझे नॉलेज को मार्क्स पे कन्वर्ट करने के लिए भी एबिलिटी चाहिए, उसके लिए भी मुझे काम करना पड़ता है। नहीं अब तो मैं 250 का नॉलेज है, मैं 300 का नॉलेज लूँगा, हो ना भाई, तेरा 300 का नॉलेज आएगा, वो तो आने ही वाला है 40-50 दिन, लेकिन वो 300 में से 300 मार्क ना लेकर स्किल है क्या तेरे पास, इज इट देयर? तो पहले एक ही काम करते हैं ना, वो जब मैं बिल्ड कर रहा हूँ अपना नॉलेज, तो साइमल्टेनियसली और एक चीज़ पे काम करता हूँ कि ये 250 के 250 मार्क में कन्वर्ट होने होना। जेई 2015 बैच, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बैच जो वो तब थी, इस साल की और अगले साल की शायद उससे ज़्यादा है, और अभी जो 5 साल में बैचेस आ रही है वो उससे भी ज़्यादा ब्रिलियंट है। लेकिन 2015 की बैच, अनुज आप्टे ऑल इंडिया रैंक 79, वो शायद पहले 5 में भी आ सकता था। फिजिक्स ओलंपियाड में 3 इंटरनेशनल मेडल्स, अनुज आप्टे, श्रेयस भट्ट, मंदार भुरचंडी ऑल इंडिया रैंक 149, एक से एक टैलेंटेड बच्चे। जेई मेन हुई, जेई मेन होने के बाद, जेई मेन उनके लिए जेई मेन यानी ऐसा कि मेरे को तो 360 में से 360 मार्क आता है, तो दे वर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑन द जेई मेन। और हर एक को, ये जो 6 लड़के थे, किसी को भी NIT या IIIT में तो जाना ही नहीं था, उनको तो सिर्फ IIT जाना था, और उनको मालूम था हमको IIT मिलती। जेई मेन एग्जामिनेशन के वक्त उन्होंने सोचा कि बस एक काम करते हैं, पूरे 360 मार्क का सॉल्व करते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। और रूपांशु गणवीर ने एक रिकॉर्ड बनाया था 328 मार्क का 360 में से, वो अपन तोड़ेंगे। सब ने उस दिन
पहले 1-2 दिन पहले सोचा होगा जिसके बारे में अपने को मालूम ही नहीं। पूरे 360 मार्क का सॉल्व करके आए। अनुज आप्टे, श्रेयस भट्ट, अश्विन तायडे, सुमित ममतानी, प्रांजल वराडे, सभी ठीक है। एग्जाम रिजल्ट आया, फ्रस्ट्रेशन तो पहले दिख रहा था। एग्जाम रिजल्ट आया, 360 में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 के अबव ये 6 के 6 लड़के रहने ही वाले हैं, एक आध लड़का 340 तक पहुंचेगा। और क्या हुआ? टॉपर वॉज 275। मंदार भुरचंडी वॉज द टॉपर विथ 275 मार्क। बाकी सब अपने 230 में से 275 मार्क थे। टॉपर IIT होम का आया, 301, एक बंदे ने 300 क्रॉस किया और खुश, पूरे IIT होम में जल्लोश। और ICAD में बॉस एक भी नहीं आया। कुछ ने बैठे पूरे सबके साथ, क्या हो गया भाई? और सबने वो जो स्टेटमेंट दिया, सर पूरे 360 मार्क का सॉल्व करना था और किसी का टारगेट था कि 360 में से 360 ही लाएंगे। अब क्या हो गया उसमें? गलती क्या हो गई? हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि भैया कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो स्किप करना, बाद में देखेंगे। नहीं आता तो इशू ही नहीं था ना, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे ना आप, वो तो अभी थोड़ी सॉल्व करेंगे। तुम्हारी 45-50 मिनट्स की साइकिल फॉलो करेंगे आप कि भैया बाद में जो आधा घंटा पौन घंटा बचता है तो उसमें वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये टेक्निक है ना। जो क्वेश्चन आते हैं हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना, ये टेक्निक है ना। तो स्कीपिंग 45 मिनट साइकिल एंड क्रॉस चेकिंग, ये टेक्निक है ना। स्कीपिंग तो गया क्योंकि तुमको हर क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने। 45 मिनट साइकिल की तो बात ही नहीं क्योंकि तुमने आखिरी के लिए कोई क्वेश्चन रखे ही नहीं डिफिकल्ट के। क्रॉस चेकिंग तो किया ही नहीं क्योंकि 360 में से 360 सॉल्व करने थे। सो इशू क्या है? मंदार भुरचंडी टॉप रैंकर है 275 मार्क का। उसके डैडी VNIT के इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड है। उन्होंने बोला कि मैंने इसका सिर्फ फिजिक्स चेक किया, उसका रफ वर्क चेक किया तो उसमें 7 सिली मिस्टेक थी। भाई ये 7 सिली मिस्टेक भी नहीं किए तो और 35 मार्क लेके 310 होता। और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में और क्या किया उसको मालूम। एक ही काम किया, स्ट्रैटेजी वक्त पे चेंज के लिए टेक्निक फॉलो की नहीं। बस ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड अगर रहेगा तो एडवांस में भी क्या कर लेंगे। क्योंकि मेरे को तो एडवांस ही करना है, मेरे को तो एडवांस ही करना है। भाई हो ठीक है, लेकिन मेन भी तो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, भले ही सिंपल है लेकिन फिर उसमें टॉप ला के दिखाओ ना। सो इज द वन फ्रॉम 2025 बैच। सिंपल है कि जो अपना रफ वर्क होता है उसको भी नीटनेस चाहिए। मेरे को बहुत लिमिटेड शीट्स मिलती है, शायद आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको और ज़्यादा डिटेल में अच्छी तरह से बताएंगे। भाई मैंने जहाँ पे रफ वर्क किया उसको राउंड मारना पड़ता है, स्क्वायर कर देना पड़ता है। भैया हो गया तेरा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने देना पड़ता है, उसकी भी एक स्किल है। और ये बंदे ने वो स्किल फॉलो नहीं की तो उसके 7 मार्क फिजिक्स में चले गए, 7 क्वेश्चंस फिजिक्स में चले गए। सिर्फ उसका रफ वर्क प्रॉपर नहीं था। जनता ने एक तो क्वेश्चन दिया, क्या फर्क पड़ता? अरे हमको तो हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना है। 2 साल से काम कर रहे हैं, 4 मार्क 4 मार्क, 5 मार्क 5 मार्क होते हैं। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। वन ऑफ द टॉप रैंकर्स, जो हम सोचते थे कि ये टॉप 100 में आएगा, जेईई एडवांस का पेपर हुआ, रैंक डिक्लेयर हुआ, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 442, गुड रैंक। ही गॉट इनटू द IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर से पास होने के बाद वो जापान गया एंड नाउ ही इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिएटल में। अभी ऑल इंडिया रैंक 442 आने के बाद जस्ट इंटरेक्शन हुआ, बस टॉप 100 में तो आ सकता था। एग्जैक्टली क्या हो गया? तो व्हाट एग्जैक्टली टोल्ड कि देखो सर, बोले कि मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट एडवांस के टेस्ट में 2 घंटे में कंप्लीट हुए। यहाँ तक तो ठीक था, 2 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हुए। मतलब व्हाट अबाउट द मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स के लिए 1 घंटा बाकी था। अब इशू ये है कि अगर मेरे पास 1.5 घंटा बाकी है और मैथमेटिक्स सॉल्व करना है तो मैं मैथमेटिक्स 1 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ। आई रिपीट, उसने ये बोला कि इशू ये है कि मेरे पास अगर 1.5 घंटा बाकी है तो मैं मैथमेटिक्स 1 घंटे में सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन 1 ही घंटा बाकी है। 1 ही घंटे में अगर एडवांस का मैथमेटिक्स सॉल्व करना है तो वहाँ मेरा गड़बड़ हो गया। क्योंकि अब टेंशन है, प्रेशर है। कहाँ मिस्टेक की इसने? 5 साल से प्रिपेयर कर रहा था, 8वीं से NTSC का टॉपर था और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फर्स्ट टॉपर था महाराष्ट्र का। क्या गड़बड़ हुई उससे? कैन एनीबॉडी गेस? 45 मिनट साइकिल कहाँ है भाई? 45 मिनट साइकिल का फॉलो की होती तो भी फिजिक्स के डिफिकल्ट या ऐसे क्वेश्चंस है जो टाइम कंज्यूमिंग है वो बाद में रख दिए होते। तेरे 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ होता, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके लिए तूने बाद में रखे हुए हैं। तेरे पास 1.5 घंटा टाइम है मैथमेटिक्स के लिए,
जो तूने 1 घंटे में कंप्लीट किया होता है और बाकी आधे घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री के डिफिकल्ट क्वेश्चन निपटाए होते हैं। केमिस्ट्री के तो होते ही नहीं ज़्यादा, फिर भी इतनी मेहनत और सिर्फ एक टेक्निक वक्त पे फॉलो नहीं की भाई ने। हम भी एक और कॉन्फिडेंस में होंगे ना, जो सेशन में आए नहीं, या हम भी एक और कॉन्फिडेंस में होंगे ना, नहीं होने वाली मेरे से मिस्टेक, हर एक से होने वाली है, लिख लो मेरे से। अब हमको ये देखना है कि मिनिमम मिस्टेक करे या तो 0 मिस्टेक करे, ये तो हो गई ना उससे भाई। सो फॉलो योर 45 मिनट साइकिल इफेक्टिवली। ये लड़की रात के 2 बजे तक जाग रही थी एग्जामिनेशन के पहले, एंड यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। पहले जागते तो बहुत बार होंगे, या 2 बजे तक जाग लिया, 3 बजे तक जाग लिया, बड़ा तीर मार दिया, मज़ा आता। दूसरा दिन कैसा जाता? दिन भर सोते रहते। आईकेट के कुछ वीडियो दिखा दूंगा, बच्चा सो रहा क्लास में, दिन भर सोते रहते, बॉडी में पूरी हीट रहती, और वो एग्जामिनेशन में जाएंगे ऐसे। वही हुआ उसके साथ। ऑब्वियसली शी कुडंट स्कोर टू हर पोटेंशियल। हाउ साउंड स्लीप बिफोर योर एग्जामिनेशन, द नाइट बिफोर योर एग्जामिनेशन। जाग के आप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हो, स्कोर कम ही होगा। एंड जस्ट स्लीप, एवरीबडी विल बी फाइन। ये बंदा जेई में ही यूज्ड टू स्कोर 85 मार्क्स आउट ऑफ 360 एट दैट टाइम। ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई रिलेटिव्स। एग्जाम का रिजल्ट आया, उसके डैडी का फ़ोन आया, वरोरा के पास शेगाव करके गाव है, वहाँ से उसके डॅडी का फोन आहे. अरे सारंग आपल्या गोलूला थोडे कमी मार्क मिळाले रे. म्हटलं किती मिळाले? ही स्कोर्ड 45. तर मार्क्स आते थे, परसेंटाइल नहीं रहते थे. 45 मार्क आले मैंने. मतलब आईकेड में तो 80-85 मार्क लेता था. तो मनोज भाऊ बोलते हैं हाँ मैं वो लेता था ना 80-85, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यों इतने कम मार्क आए. वो तो 200 मार्क का सॉल्व करके आया. गॉट द पॉइंट. क्यों करना है? मैं तो बोलता ना जिसको 10 क्वेश्चन भी आते हैं, अभी इसमें सेशन भी हुआ, रेसिडेंशियल में भी सेशन हुआ, भाई 10 क्वेश्चन भी आते तो 10 क्वेश्चन रहने दो ना यार. 75 बबल है, उसमें 10 ही बबल है, अच्छा लगता क्या? कहाँ उधर प्रेस्टीज दिखा रहे. 10 क्वेश्चन है भाई, वो 40 मार्क है. 90 मार्क वाले 1.25 लाख है, तो 40 मार्क वाले ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख है. लेकिन 14 लाख से 3-4 लाख नहीं है, 3 करोड़ में से 3-4 लाख है. ये क्यों नहीं समझते हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते कि ये क्लास यानी मेरा जो आईकेड का क्लास यानी दुनिया, ये नहीं है. आप 3-4 लाख लोगों में से हो, लेकिन एक्चुअली 16 इयर्स के लड़के पूरे इंडिया में 3 करोड़ है. तुमने जैसे ही जेई का कोर्स करिकुलम चूज किया, वैसे ही तुमने 2.5 करोड़ लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. और अभी तुम इंडिया के टॉप 3-4 लाख लोगों में जा रहे हो, तो इट इज अ ह्यूज अचीवमेंट. तो भैया 40 मार्क, इट इज ओके. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वन ऑफ बोथ आर द टॉप रैंकर्स. हाजरा की एक आदत थी कि कभी भी एग्जाम आई तो बहुत टेंशन में आता था. तो 1 साल हो गया, दूसरा साल शुरू है, बार बार बताया जा रहा है भैया एग्जाम आई तो टेंशन में क्यों आता. लेकिन टेंडेंसी है. उसके डैडी भी बोले सर एग्जाम आई तो प्रति प्रेशर में आता. एवरीबडी कैन चेंज. वो भी चेंज हो सकता था. बहुत ही सिंपल टेक्निक है उसके लिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लोड वाली बात नहीं, जो मैं अभी आगे बताऊंगा. लेकिन वो चेंज हुआ नहीं. उसने सिर्फ एग्जाम टेक्निक फॉलो करनी थी. डिटेल में बाद में बताऊंगा. अक्षत लोया के साथ ऐसा हो गया, अभी बता देता हूँ. अक्षत लोया के साथ ऐसा हो गया कि इसको पहले 5-6 क्वेश्चन आए ही नहीं. पेपर बेस्ड टेस्ट थी, अभी तो तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट है. पेपर बेस्ड टेस्ट थी, सभी के ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन पेपर था. जिनको भी ऐसे 5-7 क्वेश्चन पहले आए नहीं तो एवरीबडी इज पैनिक. ही जस्ट मेंटेन द कूल. मैं पहला नहीं आया, चलो चलता है. दूसरा नहीं आया, चलता है. तीसरा नहीं आया, चलता है. 6 नहीं आया, चलता है. 7वां क्वेश्चन आता है. आना ही है ना, मेन का पेपर है भाई, ऑल ओवर इंडिया के लिए है. इजी क्वेश्चन तो होंगे ही उसमें, मीडियम लेवल के क्वेश्चन तो होंगे ही उसमें. अक्षत ने कूल मेंटेन नहीं किया, बैचमेट्स ने कूल छोड़ दिया, टेंशन में आ गए, गड़बड़ हो गए. ही वॉज द टॉपर एट दैट टाइम. ईस्ट सेंटर, वन ऑफ द स्टूडेंट वॉज देयर मंडे. पता नहीं ये सेंटर में कभी कभी टॉपर्स को क्या हो जाता है, आखिरी में आना बंद कर देता, और कॉन्फिडेंस में आ जाता, अपने आप को बहुत ही समझता. जबकि हमको मालूम रहता है कि आखिरी वक्त पे 100% कॉपरेशन इज मस्ट, एंड जो भी कॉपरेट नहीं करता उसका रिजल्ट डूबता, हमको मालूम रहता है. किशोर सर आप हेड थे तब. किशोर सर वॉज द हेड एट दैट टाइम एट द ईस्ट सेंटर, जो भी HOD फिजिक्स के हेड ऑफिस में. पेपर दिया ओवर कॉन्फिडेंस में, गॉट लो स्कोर. 1 साल रिपीट भी किया, करना पड़ा क्योंकि जो पोटेंशियल था उसके कम स्कोर आया. अरे काहे का ओवर कॉन्फिडेंस,
ना मुझे ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए ना अंडर कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस चाहिए जी जाओ भाई राइट सॉल्व करके आओ, बस दैट इज इनफ। ऑल इंडिया रैंक 24। अभी रूपांशु आया था पिछले महीने में, अच्छी इंटरेक्शन हुई। रूपांशु को मैंने इतना तो बोल दिया भाई 1-2 साल में तेरा रिकॉर्ड टूटने वाला है, एंड ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू हियर द न्यूज़। ही गॉट द ऑल इंडिया रैंक 24 और अभी तक तो नागपुर का ये आईकैट का रिकॉर्ड है कि इज द हाईएस्ट स्कोरर। स्कोरर क्यों है? 100% ट्रस्ट, ये सबसे पहला उसका। तब 90 मार्क क्वेश्चन की हुआ करती थी जेई मेन या उसकी बैच को, अनुराग, रूपांशु, मंदार खापेकर, भागवत, अमय प्रभु ने जो इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड का गोल्ड मेडलिस्ट, उनको यही बताया गया भैया तुमको 90 में से 90 क्वेश्चन आते, लेकिन टाइम नहीं है। तुमने कम से कम 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए जो टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। तुमने सिर्फ 84 क्वेश्चन टारगेट करना है, और अगर टाइम बच गया तो ठीक है 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। एग्जैक्टली वैसी किया, नहीं तो पहले 78-79 क्वेश्चंस राइट आते थे, जैसे ही 84 का टारगेट किया तो 81-82 राइट आने लग गए, और एग्जाम में उसके पूरे 84 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए और एक क्वेश्चन ज़्यादा किया 85, और सभी के सभी राइट थे। लेकिन ट्रस्ट है ना, टारगेट 84 का था, बराबर 84 किए और टाइम बच गया तो 85 उठा लिया। एक खासियत थी, दिमाग लगाते थे यार, बाद में बोलते थे यार बराबर है, स्ट्रैटेजी तो बराबर है, नहीं मैं अपने हिसाब से करूँगा। भाई मत कर, पैदा नहीं हुए थे तुम जब से आईकैट चला रहे, और तुम्हारे डैड लोगों के साथ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देके मेरिट किया हूँ। अभी उन्होंने इंट्रोडक्शन देते वक्त बताया भाई ये जो सेशन मैं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मास्टरी है, मैंने हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टॉप की है, दैट्स वाई आई नो द स्ट्रेटेजीज, आई नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दिन में कैसा रहना पड़ता है। ओके, व्हाट डू यू नो, किसी को स्टेट बोर्ड होगा तो आई वॉज मेरिट इन द 4th स्टैंडर्ड मिडल स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम, आई वॉज 16th मेरिट ओवर देयर इन द डिस्ट्रिक्ट। हाई स्कूल स्कॉलरशिप एग्जाम आई वॉज द 8th मेरिट ओवर देयर। बाद में गेट एग्जामिनेशन हुई जहाँ 95 परसेंटाइल, बाद में GRE एग्जामिनेशन हुई स्टडी अब्रॉड के लिए, अमेरिका के एडमिशन के लिए, वेयर आई स्कोर्ड 2000 आउट ऑफ 2400 एंड आई गॉट द एडमिशन इन द टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज ओवर देयर, और वो छोड़ के मैंने आईकैट शुरू किया था। सो कमिंग डाउन टू द लास्ट फ्यू एग्जाम्पल्स, सो वी आर हैविंग ओवर हियर लास्ट ईयर टॉपर्स ऑफ नीट, सौम्या दीक्षित, शी स्कोर्ड 690 आउट ऑफ 720, and we are having the Bhargavi Jiddewar, she got 665 or something out of 720. दोनों को 720 आउट ऑफ 720 मार्क का आता था। इशू यही है ना कि अगर मुझे 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स का आता है तो वो कन्वर्ट करने की भी तो एबिलिटी होना। सौम्या हैज़ नॉट अपीयर्ड फॉर फाइनल टेस्ट, जो आखिरी 15-20 टेस्ट हुई उसने अपीयर नहीं की, नॉट एवर द हर इशू वॉज, जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल थी। लेकिन ठीक है, इट इज़ गुड दैट शी मैनेज टू स्कोर 690। भार्गवी का केस मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ आपको कि पूरा 720 मार्क का आता था। अब मेंटल स्टेबिलिटी तो होना ना भाई, 720 मार्क का आता है इसका मतलब क्या है कि यू नो ऑल द 180 क्वेश्चंस। देन इफ़ यू नो ऑल द 180 क्वेश्चंस, आपके पास 3 घंटे है, तो अभी तुम इमेजिन करो यार, मेरे को अगर 60-70 क्वेश्चन आ रहे तो समझ सकता हूँ, लेकिन पूरे 180 आ रहे हैं। अब तुम इमेजिन करो कि इसको कितनी मेंटल स्टेबिलिटी लगेगी कि उसका पहला क्वेश्चन भी राइट होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन भी राइट होना चाहिए, तीसरा भी राइट होना चाहिए, हर क्वेश्चन क्रॉस चेक होना चाहिए, 10वां भी राइट होना चाहिए, और 10वां 8-10 क्वेश्चन अगर राइट हो गए ना तो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आता है, जम रहा भाई। 11वें क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होती ही है, क्योंकि वो अपना दिमाग 8-10 हो गए, अरे जम रहे, रुकना भाई। स्टेबिलिटी कैसी लगती है, पहला भी राइट क्रॉस चेक, दूसरा भी क्रॉस चेक, तीसरा भी क्रॉस चेक, 50वां भी क्रॉस चेक, 100वां भी क्रॉस चेक, फिर भी मेरी कंसंट्रेशन वही है, मेरा फोकस वही है, मेरा डिटर्मिनेशन वही है, मेरा कमिटमेंट वही है, और पूरा 180 तक मैं फुल कंसंट्रेशन रखता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, कब जाके 720 मार्क आते हैं। और वैसे इंडिया के 2-3 लोगों को ही आते हैं, कभी 69 लोगों को आते हैं जो पिछले साल हो गया, फिर तो उसमें तो ऑप्शन ही रटने पड़ते ना, बाकी क्या करना पड़ता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो जो भी यहाँ नीट के बच्चे बैठे हैं जिनको 720 टारगेट करना है, तो भैया मेंटल स्टेबिलिटी आपसे एक्सरसाइज करना शुरू करो। मई 1st वीक में एग्जाम है, मई नहीं है आपके पास, अप्रैल तक ही टाइम है अपने पास, और आज से ही तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी रोज एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसे डॉक्टर लाहिरी बद्दू की हुई थी। जो भी आपकी टेस्ट होंगी, कल अगर FTSM है, अपन ये सोचते यार और 20-25 FTSM बाकी है, नहीं, वो मत छोड़ दो, 20-25 बाकी है, कितनी बाकी है जान दो,
अगर कल है तो कल के बारे में सोचो सिर्फ। ये FTSM परफेक्ट जाना चाहिए। पिछले 4 या पिछले 10 FTSM में मेरे ये मिस्टेक्स हुए थे, ये मिस्टेक अब ये 11वीं में नहीं होंगे या 12वीं में नहीं होंगे। और ऐसा सॉल्व करना कि भैया जैसे कि ये फाइनल एग्जाम है, ऐसा सॉल्व मत करना कि 25 एग्जाम दे रहे हो उसमें से एक है, ऐसा मत सॉल्व करना। फाइनल एग्जाम करके ही सॉल्व करना उसको। जैसी टेस्ट हो जाती है फिर से बैठो, फिर से टेस्ट एनालिसिस करो, फिर से मिस्टेक देखो, फिर से देखो कि भैया अपन क्या कर सकते हैं इसमें, और उस हिसाब से एग्जीक्यूट करो। फिर 13वें के पीछे लगो, फिर 14 के पीछे लगो, एक एक करके परफेक्ट करो। वेस्ट मत करो एक भी टेस्ट इसमें। एंड एवरी टेस्ट यू आर सपोज टू सी दैट एवरी टेस्ट यानी ये फाइनल एग्जामिनेशन है, ये समझ के आप कर रहे हैं। बिफोर आई स्विच टू दिस स्लाइड, अभी आपका 2 चीज़ें चल रही है। आपका बूस्टर सेशन चल रहा है और बूस्टर के साथ साथ आपकी फाइनल टेस्टिंग भी चल रही है। FTSM बोलेंगे, FTSN। बूस्टर का पर्पज़ ये है कि आपका कल जो आपको टॉपिक दिया गया है आप उसको प्रॉपरली रिवाइज करके आओ, और रिवाइज प्रॉपरली करो, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर सॉल्व करो। कल जब आप आ रहे हैं तो फैकल्टी मेंबर्स उसको रिवाइज करेंगे और सॉल्विंग देंगे। अब इशू ये है कि भैया वो सॉल्विंग में आपने परफॉर्मेंस अच्छा देने को होना, उसके लिए आपको पहले दिन अच्छा प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बंदा 100% अच्छा प्रिपेयर करके आएगा, कोई बंदा 20-25% ही अच्छा प्रिपेयर करके आएगा, लेकिन आना पड़ेगा। किसी को सॉल्विंग में शायद 80% मार्क क्वेश्चन जमेंगे, किसी को शायद 10% ही क्वेश्चन जमेंगे, चलेगा। लेकिन जितने आएंगे उतने परफेक्ट सॉल्व करेंगे। और जो आपका सॉल्विंग सेशन है, मैं आपको भी बोलता हूँ, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि हर सॉल्विंग सेशन एग्जामिनेशन समान ट्रीट करो। हर सॉल्विंग सेशन में आपकी एग्जामिनेशन टेक्निक आनी चाहिए, स्किपिंग, क्रॉस चेकिंग आना ही चाहिए। क्योंकि ये सॉल्विंग सेशन में अगर आप सिली मिस्टेक की आदत डालोगे, कल के सॉल्विंग सेशन में आप सिली मिस्टेक की आदत डालोगे, हो क्या रहा है कि आदत पड़ते जा रही सिली मिस्टेक करने की, जो फाइनल एग्जामिनेशन में भी होगी। और हर सॉल्विंग सेशन में और हर टेस्ट में अगर आप एक्यूरेसी की आदत डालते हो तो वो एक्यूरेसी फाइनल एग्जामिनेशन में भी आएंगी, वो हैबिट। और फाइनल एग्जामिनेशन में सिर्फ हैबिट आती है। अगेन आई रिपीट, फाइनल एग्जामिनेशन में सिर्फ हैबिट आती है। अपन बहुत सोच के जाते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, और बाद में अपन 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो ध्यान में रहता, 5वें क्वेश्चन में क्या आता है? हैबिट। तेरी एक्यूरेसी की हैबिट है तो एक्यूरेसी की हैबिट आएंगी, तेरी क्रॉस चेक की हैबिट है तो क्रॉस चेकिंग की हैबिट आएंगी, तेरे को स्किपिंग की हैबिट है तो स्किपिंग की भी आएंगी, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना तो वो भी आएंगी, लेकिन हैबिट ही आएंगी एग्जाम में। नहीं तो सोच के कुछ भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला। जो हैबिट है वो आएगी, जो आदत है वो आएगी। वाई टेस्ट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। पेपर हो गया, मुझे सिर्फ इतना देखना है कि भैया पेपर हो गया, मुझे कितने मार्क मिलने चाहिए थे। मुझे 120 मार्क मिले, लेकिन एक्चुअली मुझे कितने मार्क मिलने चाहिए तो ध्यान में आता 160 मिलने चाहिए थे। फिर वो 40 क्यों गए? यार ये क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन में फालतू अटक गया, टाइम गया, बाद में प्रेशर बिल्टअप हुआ, बहुत फास्ट सॉल्व करने में आया, क्रॉस चेकिंग हुई नहीं। ये टॉपिक मेरे और अच्छे हुए थे, अभी मेरा रिवीजन इसका नहीं हुआ है प्रॉपरली, ये टॉपिक का रिवीजन हो गया तो और 2-4 क्वेश्चन मेरे राइट आ जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपकी मिस्टेक हो गई होंगी तो आपको उसका एनालाइज करना ही पड़ेगा, भाई ये मिस्टेक क्यों हो गई, क्योंकि ये तो आता था। इतना सीरियसली लेना पड़ता है टेस्ट एनालिसिस, क्योंकि जितना आप 1-2 घंटा उसके ऊपर बैठते हो, ज़्यादा भी बैठ सकते हो, जितना आप उस पर बैठते हो उतना ध्यान में आता अपन क्या गड़बड़ कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है, टेस्ट देते, पेपर अंदर डालते, फिर उसका स्कोर देखते और ये सोचते अब अगली बार ज़्यादा स्कोर पढ़ाई करूँगा। अरे भाई लेकिन क्या पढ़ाई करेगा, वो तो टेस्ट एनालिसिस बताएगा। यार 50-60 मार्क जा रहे हैं, वो 50-60 मारने के लिए क्या स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, वो टेस्ट एनालिसिस करने के बाद मैं स्ट्रैटेजी लिखूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा 2-4 दिनों में या 1-2 हफ्ते में। ऐसा थोड़ी है कि बस टेस्ट एनालिसिस कर लिया, बस हो गया, समझ गया, नहीं समझ कहाँ गया, उसके फिर एक्शन प्लान बनाऊंगा। ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, अगले बार स्कीपिंग परफेक्ट करूंगा और वो एग्जीक्यूट करूंगा सीरियसली। दिस इज ये 5-6 महीने में तो पूरा रिजल्ट बढ़ता है क्या? नहीं तो कोचिंग क्लास का तो बहुत सिंपल है, भाई मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मेरा काम हो गया, तुम टेस्ट सीरीज दो मत दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉपर तो मेरे आ ही रहे हैं। 20 मार्क वाले पे भी ध्यान दे रहा हूँ ना, क्योंकि हर एक का करियर बनने वाला है और ये गलतियां होने वाली है तो अवॉइड कराएंगे। सो यू आर गोइंग फॉर द 1 or 3 years ऑफ टेस्ट एनालिसिस, यू आर formulating your own action plan and you are executing your action plan, क्योंकि हर एक का डिफरेंट रहेगा। Coming down to the examination center, can anybody answer this? क्यों टेंशन आता है? Do you have mic with us? Okay, कोई बताना चाहेगा? You can raise your hand कि why students are tense at the examination center. Anybody wants to try? आंसर गलत हुआ तो चलेगा। Yes, there is one student over there.
यस गुड मॉर्निंग सर। या सर मुझे लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर से पहले या फिर एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमको लगता है कि हम सब रिवाइज कर लें, ले वो हम कर नहीं पाते क्योंकि हमने अभी तक ज़्यादा रिवीजन नहीं किया होता है। तो हमें हर दिन रिवीजन करना चाहिए, टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए, सो डैट हमने क्या एग्ज़ाम सेंटर पे हमें टेंशन नहीं आएगा। परफेक्ट। तो आपको लगता है कि आखिरी वक्त तक पढ़ते रहेंगे, वक्त तक रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जामिनेशन में प्रेशर आता है। दिस इज द वन फैक्टर। एनी अदर? या गुड मॉर्निंग सर। सर टेंशन इसलिए आता है क्योंकि हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हाँ, वेरी गुड आंसर। दैट इज द वेरी परफेक्ट आंसर। रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि क्या आएगा क्या नहीं, तो उस हिसाब से जो है वो भी ढंग से नहीं होगा और जो आता है उसमें भी गलतियाँ होगी। तो रिजल्ट के बारे में ना सोच के जो आता है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करा तो मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। बहुत ही राइट आंसर एंड यू आर द परफेक्ट आंसर। थैंक यू सर। एनी अदर वांट टू ट्राई? या प्लीज यू कैन आल्सो गो फॉर इट। क्या नाम है बेटा आपका? वरद। ओके भरत। कभी कभी हम ये सोचने लगते हैं कि 2 साल की मेहनत है, एक दिन में पूरा मतलब 3 घंटे में हमें वो मेहनत पूरा निकालना है। तो कभी कभी हम खुद से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि मिनिमम इतने तो लाने हैं, उतने तो लाने हैं। तो उसमें जो प्रेशर डेवलप होता है उसके वजह से हम कई बार ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, क्रॉस चेकिंग नहीं करते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती है। तो परफेक्ट। अगेन थोड़ा बहुत आपने भी बहुत ही उसको प्रॉपरली रिवर्डिंग किया है कि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, हम स्कोर का टारगेट रखते हैं और जो बाकी बेसिक चीज़ें हम वो भूल जाते हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सो वेरी परफेक्ट आंसर अगेन फ्रॉम यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। या सर हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ स्टूडेंट की गलती होती है। समटाइम्स पेरेंट्स अराउंड और हूसोएवर इज अराउंड अस वो भी हमें बोलते हैं कि अच्छा करना। सो वी गेट प्रेशराइज्ड कि सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे, तो वी हैव टू कम ट्रू फॉर देयर एक्सपेक्टेशंस। सो इट मेक्स अस टेंस्ड समटाइम्स। गलत है क्या उनका? राइट। क्योंकि जब वो आपको जेई के क्लास में डाल रहे हैं या ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भी दिखाया होगा कि आप पढ़ाई करते हो और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन बनी जाता है और रहना भी चाहिए। हमको सिर्फ आना चाहिए कि उसको अपन कैसे हैंडल करें। ओके, सो गुड। बहुत ही जो चीज़ सोची भी नहीं कि वो भी आ गए मेरे पास। ओके, लेट्स गो फॉर इट। एक बच्चा है जिसको 120 के आसपास मार्क्स आ रहे जेई मेन में। नॉर्मली आईकेट की जो आखिरी 5 FTSM ले लो या FTSN ले लो जो नीट के होंगे, या तो फिर उसका एवरेज निकाल लो, मोर और लेस उतना स्कोर आ गया तो भी बहुत है। और उसका स्कोर सपोज 120 के आसपास आता है और वो अभी एग्जामिनेशन में जा रहा है और उसने क्या सोच के गया, आज तो यार 170 180 तो मारूंगा ही, 40-50 मार्क तो बढ़ाना ही है आज। क्या ये पॉसिबल है? 100% नहीं है। यानी कैसे बोलते हैं ना, अपनी औकात ही 120 की, अपन क्या को 170 सोच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है कि हम वो अपने पहुंच के बाहर का टारगेट कर रहे हैं और जैसे ही अपन अपने पहुंच के बाहर का टारगेट करते हैं अपना टेंशन बढ़ जाता है। क्यों टेंशन बढ़ जाता है? उसके लिए अपन प्रिपेयर्ड ही नहीं है। हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कोशिश कर रहे हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन पे अटक जा रहे हैं। क्यों उसको उस पे अटक गए? स्किप क्यों नहीं किया? क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 170 मार्क का टारगेट है। कुछ नहीं करना ऐसा। तो उन्होंने सबसे पहले जब बताया उन्होंने कि भैया वरद ने कि स्कोर हमने वो स्कोर टारगेट ही नहीं करना चाहिए। मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, आज 150 लाऊंगा, 200 लाऊंगा, ये स्कोर टारगेट ही नहीं कर सकते क्योंकि डिफिकल्ट निकला तो कम लाओगे, इजी निकला तो ज़्यादा लाओगे। तो अपन स्कोर तो वैसे भी टारगेट नहीं कर सकते। तो अपने टारगेट क्या रखना चाहिए? एक ही टारगेट, एक ही रहेगा। जितने आते उतने क्रॉस चेक करके एक्यूरेटली सॉल्व करता, इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं रहेगा। ना स्कोर का प्रेशर, ना किसी चीज़ का प्रेशर, शायद पेरेंट का भी नहीं है। टारगेट इतना ही है, बस जितने आते उतने क्रॉस चेक करके राइट सॉल्व करता, दैट्स ऑल। इसमें पूरे प्रेशर में हल्के हो जाते हैं। So students are tense at the examination. They are targeting beyond reach. कहीं ना कहीं कुछ लोग वक्त भी नई स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। बस केमिस्ट्री मेरा जम जाता है, मैथमेटिक्स में हमेशा कम टाइम मिलता है, इस बार ऐसा करता हूँ केमिस्ट्री में और कम देता हूँ, फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मैथमेटिक्स में थोड़े 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए। एक स्टूडेंट ने किया था टॉप रैंक करने IIT में, वो अभी
लेकिन उसने ये किया था और 8-10 केमिस्ट्री में सिली मिस्टेक मार दिए थे। कोई वक्त पे स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करेंगे अपन जो एग्जाम में गए, जो अपन स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर रहे थे वही इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी करेंगे, कोई ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अपनी वही स्कीपिंग, अपनी 45 मिनट साइकिल, क्रॉस चेकिंग और टारगेट सिंपल कि भैया जितने आते प्रॉपर क्रॉस चेक करके एक्यूरेट सॉल्व करके वापस आना है, दैट्स ऑल। कोई डिफरेंट चीज़ नहीं। ऐसा लगेगा यार कुछ डिफरेंट कर ही नहीं रहा, स्पाइस कैसे आएगा लाइफ में? एग्जाम में थोड़ी ना स्पाइस लाना है, स्पाइस लाने के चक्कर में और गड़बड़ हो जाएंगी। सो द मंत्रा, सक्सेस मंत्रा इज ओनली टारगेट सॉल्व एंड क्रॉस चेक ओनली दोज क्वेश्चंस यू आर 100% कॉन्फिडेंट एंड टारगेट इज सिंपल कि जितने आते उतने राइट सॉल्व करके आता हो। इजी क्वेश्चन पेपर आया, व्हाट इज द रिएक्शन एंड यूजुअल रिएक्शन? वी आर हैप्पी, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। पूरा पेपर फटाफट बढ़िया सॉल्व करते बाहर निकलते हैं, अपने हैप्पीनेस बाद में चला जाता है। क्यों? पहला फैक्टर, वो सबके लिए इजी था। सब अपने दोस्त बोलते हैं इजी था पेपर आज, यानी अपन ने जितनी खुशी हो गई थी अपने को, और अपने को दिखता है यार सबके लिए इजी था यार। दूसरा फैक्टर, फिर अपन चेक करना शुरू कर देते हैं, डिस्कस बिल्कुल, अरे यार फिर ध्यान में आता है 5वां क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ी देर में ध्यान में आता 8वां भी गलत हो गया, फिर ध्यान में आता 12वां गलत हो गया, अपन बंद करते जानते बोलते व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? क्योंकि अपन इतने एक्साइट हो गए, अपन इतने सुपर एक्साइट हो गए कि ये भूल ही गए कि इजी पेपर है, सबके लिए इजी है। अपन ये भूल ही गए कि इजी पेपर है तो भैया अभी सिली मिस्टेक बहुत होने वाले हैं। सो जस्ट नो दैट वेन एवर द इजी पेपर देयर, इट इज इजी फॉर अदर स्टूडेंट्स टू। जो सिंपल बोर्ड भी अच्छा प्रिपेयर करने वाले लड़के, वो भी अभी कंपटीशन में आ गए क्योंकि उनके लिए भी इजी हो गया। हम तो चाहते पेपर डिफिकल्ट निकला ना तो अपन खुश रहते एक्चुअली, हम आई वाले, राइट? कट ऑफ इंक्रीज होगा और इजी पेपर है तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बस ये सबके लिए इजी है। कंपटीशन अभी बढ़ने वाली है क्योंकि बॉर्डर के भी लोग भी अंदर आ गए, कट ऑफ इंक्रीज होगा और साथ साथ में अब मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे सेम परसेंटाइल लेने के लिए। शायद पेपर डिफिकल्ट है, 300 में से अगर 100 मार्क भी करना मुश्किल है तो 100 मार्क वाला शायद 100 परसेंटाइल लेके जाए, लेकिन अब इजी है तो शायद 300 भी मार्क लेने पड़े। वेदांत साबू का एग्जांपल बाद में बताऊंगा। ओके, एंड व्हाट इज योर रिएक्शन टू डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर? अरे डिफिकल्ट आ गया, पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, चौथा नहीं आ रहा, 5वां नहीं आ रहा, 8वां नहीं आ रहा है, अपन टेंशन में। बट एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल। पर मेरे को नहीं आ रहा तो बाकियों को भी नहीं आ रहा, क्या लोड ले रहे अपन? सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू। अब ये बॉर्डर पे जो लोग थे जिन्होंने बोर्ड वगैरह एनसीईआरटी थोड़ा प्रॉपरली किया था, जो अभी कंपटीशन में आ गए वो निकल गए, और जिन्होंने प्रॉपरली प्योरली जेई के लिए पढ़ी कि वही कंपटीशन में है, कट ऑफ डिक्रीज होगा। ओके, एंड नाउ यू आर सपोज टू सॉल्व लेस क्वेश्चंस एक्यूरेटली। इजी में यू आर सपोज टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस एक्यूरेटली एंड डिफिकल्ट में यू आर सपोज टू सॉल्व लेस क्वेश्चंस एक्यूरेटली फॉर द सेम परसेंटाइल। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू शुड बी हैप्पी विथ इजी क्वेश्चन पेपर और डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली अपना उल्टा होता है, अपन इजी पेपर आ गया तो अपन वी आर वेरी हैप्पी। एक्चुअली यू शुड बी हैप्पी टू सी द डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। बस कम क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। और इजी आ गया तो सबसे पहले अलर्ट हो जाओ, सबसे पहले अनहैप्पी हो जाओ, सबसे पहले सोचो कि बस अब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्यूरेटली सॉल्व करने हैं। और ये कहीं भी सिली मिस्टेक होने वाली है इस पेपर में, क्योंकि मैं और कॉन्फिडेंस में आ सकता। सो द वेन एवर द इजी पेपर इज देयर, गेट एक्सट्रीमली अलर्ट। बस हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक, कितना भी सिंपल क्वेश्चन लगा लेकिन क्रॉस चेक। मेरे 5 क्वेश्चन इजी निकल गए, बस 6वें क्वेश्चन में और कॉन्फिडेंस में आके नहीं, 6वां भी क्रॉस चेक, 7वां भी क्रॉस चेक, 8वां भी क्रॉस चेक, पूरे क्वेश्चन क्रॉस चेक। इजी है, पकड़ेगा कहीं ना कहीं ट्रैप में। बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। क्या करेंगे इसमें? 15 मिनट लेट पहुंच गए एग्जाम सेंटर में, सर मैं लेट पहुंच गया इसके लिए मेरा क्वेश्चन पेपर बिगड़ गया। अरे क्यों बिगड़ा भाई? वैसे भी तो 20 क्वेश्चन आते थे, 1.5-2 घंटे तो लगते उसके लिए क्रॉस चेक करके प्रॉपरली सॉल्व करने के लिए। समर नहीं होती तो जनवरी में एग्जाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नो सेंटर इज हैविंग द एयर कूलिंग सिस्टम और एयर कंडीशनिंग सिस्टम और सच लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे कंप्यूटर्स तो है लेकिन ऐसे कूलिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट देंगे उसका तो प्रॉब्लम है, और एडवांस वालों को और प्रॉब्लम है, और MST वालों को भी प्रॉब्लम है। सो जस्ट बी रेडी, देयर इज नॉट गोइंग टू बी द एयर कूलिंग सिस्टम। बहुत पसीना आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर में भी पावर कट, कभी आपका कंप्यूटर ही हैंग हुए जा रहा है, हो सकता है उसमें भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंग हो गया, बिल्कुल शांत रहो, अपना इशू रिपोर्ट करो, प्रॉपर करो और बैठ जाओ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसके लिए सेम अलर्टनेस से आप बैठे हो।
तो कहीं भी एग्जामिनेशन की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, बस वो कुछ भी हो। मेरे को पहले 10 क्वेश्चन नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता, 11वां तो आएगा। सो वॉट एवर द इवेंचुअलिटी यू सपोज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, फील दैट यू आर द बेस्ट। नहीं लग रहा क्या? आईकैड में है ना अपन, जो कंपटीशन है आईकैड वालों के साथ ही है। तुमको लग रहा होगा ये इंस्टीट्यूट अच्छा करता हूँ, इंस्टीट्यूशन अच्छा करता हूँ। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ऐसे ऐसे उनको स्कोर कार्ड दिखा दूँ कि 0 परसेंटाइल फिजिक्स, 0 परसेंटाइल मैथमेटिक्स, 35 परसेंटाइल केमिस्ट्री। लेकिन अगर उसको पूछा गया अरे कितना मिला, 70 परसेंटाइल मिला, कौन देख रहा है उसका क्वेश्चन पेपर या स्कोर कार्ड? आई स्ट्रांगली बिलीव with our practices, ICADians are the best people or best prepared people. यहाँ पे जो 20-40 मार्क ले रहा है वो भी बेस्ट प्रिपेयर्ड है, यहाँ का टॉप रैंकर भी बेस्ट प्रिपेयर्ड है। सो वेन एवर यू आर गोइंग एट द एग्जामिनेशन सेंटर, जस्ट फील दैट यू आर द बेस्ट। एंड वाई यू आर सपोज टू फील दैट? ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा हूँ, मेरे को फील इसलिए कर रहा हूँ कि 4000 लोग आने वाले हैं, तो मेरा कोई प्रेशर ही नहीं। भैया मालूम है ना, तुमने टाइम पास किया है पूरे 2 साल, फॉर्म भरा और आ गए। एंड वेन ये क्यों काम में आता है, फील दैट यू आर द बेस्ट? सिंपल, आई गिव माई ओन एग्जाम्पल। वो प्रणव देशपांडे ने अगर वो डिप्रेशन में आ गया होता, या मेरे इसका 2100 ये पढ़ रहा है, मैं 1700 लेके मैं नहीं पढ़ रहा, तो क्या सही में उसको 1950 स्कोर आता था? उसने तो ये सोचा ना, पगला है साला, 2100 और कितना हो ना जिंदगी में। तो जो बच्चे, कोई बच्चे पढ़ रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया अपने को मालूम है अपन बेस्ट है, अपन जो करना है जाना है, जितना आता है एक्यूरेटली सॉल्व करना है, वापस आना है। जब मैं एग्जामिनेशन के हॉल से बाहर निकलूं और मुझे अगर ऐसा लगे कि भैया जितना मैंने आता था उतना राइट सॉल्व किया, तो मैं विनर हूँ। फ्रस्ट्रेट भी होने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई मिरेकल थोड़ी ना लेके एक्सपेक्ट करके गया था। So I'm supposed to follow the examination technique, and I'm here to solve only the question the best known to me, that's all, and बाकी सब छोड़ने वाला हूँ मैं। That is the examination template I'm saying. So lastly, our suggestion in nutshell, पहला solve all mock test, ऐसी सॉल्व करना है कि भैया हर टेस्ट फाइनल टेस्ट है। दूसरा, टारगेट एक्यूरेसी, not only in solving, not only in test, but also in solving। कहीं भी घर में बैठ के अगर तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें भी एक्यूरेसी टारगेट करो, और आईकैड में अगर सॉल्विंग कर रहे हो तो उसमें भी एक्यूरेसी टारगेट करो। डोंट चेंज स्ट्रैटेजी एट द लास्ट मोमेंट। मैं आज मैं ऐसा करके देखता, भैया रहने दो, जैसे करते आ रहे बस वैसे ही फॉलो करना है, कोई टेंशन नहीं आएगा। स्टॉप स्टडिंग अ डे बिफोर, अच्छी नींद लो, गप्पे लड़ाओ शाम को फैमिली के साथ, अच्छी नींद लो, सेंटर वेंटर देख के आ जाओ, आईकैड में भी आ जाओ। सो इम्प्रूव विथ ईच टेस्ट ग्रेजुअली and consider each test as the final test. In examination, treat each section as different. Don't let performance of one section hamper another. ये एक डॉक्टर प्रोड्यूसरी जो मैंने एग्जामिनेशन डिस्कस नहीं किया, उसका पहला सेक्शन बिगड़ गया, क्या फर्क पड़ता है? पहला बिगड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना था उतना एक्यूरेटली सॉल्व किया। आपके पास 25 क्वेश्चन थे, आपने 10 ही सॉल्व कर रखा है पूरा, लेकिन एक्यूरेटली सॉल्व किया, इट इज इनफ, दैट इज ओवर नाउ। देन गो फॉर द केमिस्ट्री, देन गो फॉर द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, वट एवर। ट्रीट ईच क्वेश्चन डिफरेंटली, ट्रीट ईच सेक्शन डिफरेंटली। यार 10 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए, होने दो ना, सबके 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, क्या लोड ले रहे हो? क्रॉस चेक करके राइट सॉल्व कर ले, दैट इज द सेटिस्फैक्शन। 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे, 180 में से 180 राइट लाने हैं, हर क्वेश्चन में डिफरेंटली ट्रीट करूंगा भैया, ये टाइम में होने को होना, एक्यूरेट सॉल्व करने होना, एंड पूरा 3 घंटे। यू कैन इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली द लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ 75 क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन में लगता है। लेकिन है ना अपने टॉप रैंकर, जितने साल के उतने के उतने राइट लाते थे ना। आरटी में इफ यू आर गेटिंग 300 और 296 आउट ऑफ 300, इसका मतलब क्या, उसने एक क्वेश्चन छोड़ा है, पूरे 296 का राइट किया है। समीर पांडे, ऑल इंडिया रैंक 102। सो योर लास्ट 30 मिनट्स विल बी कूल। अरे कितना बढ़िया है ना कि मैंने 45 मिनट साइकिल फॉलो की। मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आते थे मैंने क्रॉस चेक करके राइट किए। तो इमेजिन, यू मस्ट बी डूइंग दैट, कि मैंने पहले फिजिक्स का हाथ लगाया, 45 मिनट्स में जितने क्वेश्चंस आते थे पूरे एक एक क्वेश्चन राइट किया है, क्रॉस चेक किया है। जो नहीं आते थे वो तो छोड़ दिए, जो डिफिकल्ट थे वो बाद में। ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री के साथ किया, 45 मिनट्स तो लगे नहीं, उसमें तो 35 मिनट ही लगे, लेकिन हर क्वेश्चन मैंने क्रॉस चेक किया। ऐसा ही हमने मैथ्स के साथ किया, जहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन हर क्वेश्चन क्रॉस चेक है। अब 2.5 घंटा कंप्लीट हो गया है और आपके पास सपोज 30 मिनट्स है, लेकिन अभी फीलिंग कैसी है? आई एम आउट ऑफ डेंजर जोन, जितना हो गया डब्बे में भर दिया मैंने। और ये 30 मिनट में मुझे अभी कुछ 5-10 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे हैं जो डिफिकल्ट है।
तो एक चीज ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं 5-10 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, एक एक खींचना है। 10 में से एक जम गया वेरी गुड आजा, दूसरा जम गया वेरी गुड आजा, 3 ही जमे चलता। नहीं यार मेरे पास टाइम बचा और 4-5 मत कर, क्योंकि जो आते हैं उतने ही लेने हैं। जरूरी नहीं आप यहाँ बैठे शायद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जम रहा है, छोड़ दो। 30 मिनट्स है, 10 क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे थे, एक भी क्वेश्चन नहीं जम रहा है, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना डब्बा पैक हो चुका है, 2-3 आ गए तो अच्छी बात है, उसमें मत प्रेशर क्रिएट करो, राइट। So last 30 minutes should be cool when you solve all the easy questions accurately and searching for few more. Accuracy is the key to satisfaction, not guessing. अपने आप को कभी कंपेयर मत करो, मैं 30 मिनट बैठा हूँ बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं और मेरे को ध्यान देना, 2-4 जम गए तो जम गए, बस बढ़िया। आई टेल यू वन ऑफ माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंस, जब वो 10वीं में थे NTSE में, हमको तो क्लियर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो मैंने फर्स्ट फेज क्वालिफाई भी किया था, हम गए थे अमरावती में एग्ज़ाम देने। पूरी हमारी मैडम सब बच्चों को लेके गई थी और बाजू में बंदा बैठा था, कर रहा है सॉल्व, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए उसने। उसके साथ मेरा दोस्त बैठा था। एग्जाम के बाद वो दोस्त क्या बोलता है, यार बोले मेरे को 30% ही क्वेश्चंस जमे, टाइम ही नहीं पूरा, इसने पूरा ही किया। बोले आगे वाला क्या बोलता, वैसे भी नहीं आ रहा था तो गेसिंग ही तो कर रहा था। आपको मालूम ही नहीं आगे वाले क्या है। 7th स्टैंडर्ड जब मैंने हाई स्कूल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन दी तब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 18 मेरिट आते थे, और मजाक नहीं 18 मेरिट। और जब एग्जामिनेशन के लिए गया तो पूरा एग्जामिनेशन स्कूल में हजारों लड़के आए एग्जाम देने। मेरे खुद के एग्जामिनेशन में हॉल में बहुत बड़ा हॉल था, 100 लोग बैठे होंगे। एग्जाम हो गई, डैडी लेने के लिए आए और डैडी ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कैसा आया। मतलब मैं आ जाता मेरिट, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के पहले 18 में आ जाता, पहली बात। और दूसरी बात कि मेरे क्लास में जितने 100 लोग थे एक भी पास नहीं होने वाला, या मेरिट तो आने ही वाला नहीं। मतलब कैसे, मैं बोला टॉपर मार्क लेंगा 80%, यानी 240 मार्क तक फर्स्ट टॉपर रहता है 300 में से। मुझे 225 मार्क तक आया। गेसिंग नहीं करना था तो मैंने क्रॉस चेक करके 225 मार्क का सॉल्व किया। मेरे पास बहुत सारे ब्लैंक स्पॉट्स थे, लेकिन मेरे क्लास में एक भी लड़का ऐसा नहीं था जब पेपर सबमिशन की बारी आई कि उसने कोई ब्लैंक स्पॉट छोड़े होंगे। सबने पूरे 300 मार्क का सॉल्व किया था। जब टॉपर ही 80% का है तो मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ये जो बाकी 99 बच्चे बैठे हैं इनको 300 मार्क आता होगा, लेकिन गेसिंग तो कर चुके, इसलिए एक भी बच्चा मेरिट नहीं आता। उस वक्त 228 पे फर्स्ट मेरिट आया, 219 में 8वां मेरिट था और 215 पे मेरिट लिस्ट क्लोज हुई। और मैं कहीं भी गेसिंग वेसिंग करते बैठता था तो ये तो नहीं होता था। इसलिए इधर उधर देखना ही नहीं, इधर उधर सोचना भी नहीं। जो अपन उधर मैं ये सोचा, मैंने वो सोचा, कुछ सोचो मत, एक ही सोचना है भैया एक्यूरेसी। जितने आते उतने राइट सॉल्व करना, वही सोचना है। आप भी सोच रहे होंगे साला पूरा सेशन हो गया, एक ही तो बात बतानी थी, पहले ही बता देते। इतने एग्जाम्पल देके अगर नहीं बताता तो शायद वो बात ही ध्यान में नहीं रहते। सो यू शुड बी हैप्पी टू गेट द डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। टेक केयर ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ नेशन। डिफिकल्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है, जितना हम सॉल्व करना है राइट सॉल्व करना है। एंड लास्टली डोंट एक्सपेक्ट एनी मिरेकल टू हैपन। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकल रहे थे, मुझे 50 मार्क का आता था, मैंने 100 मार्क का सॉल्व किया, फालतू बात है। एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर निकल रहे मुझे 150 मार्क आता था, पूरा का पूरा क्रॉस चेक करके राइट किया। यू शुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी, यू आर द विनर ऑन दैट डे। जस्ट फील दैट यू आर द बेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। सम अदर पॉइंट्स, सो प्रिपेयर फ्यू टॉपिक्स 100% rather than 50% ऑफ एवरी टॉपिक। ठीक है, जितना भी आप कर रहे हो परफेक्ट करो। मेडिटेशन शुरू कर दो अभी से, 10 मिनट तो ले ही रहे होंगे, सभी सेंटर्स में हो रहा है। अच्छा लग रहा होगा तो 20 मिनट घर पे ले लो, बिल्कुल थॉटलेस जाओ। यार बहुत थॉट्स आते हैं, आएंगे ना, बहुत थॉट्स आते हैं, इसका मतलब है हमको मेडिटेशन की जरूरत है। क्लियर। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, आज से शुरुआत करेंगे या शुरुआत हो चुकी है आपकी, ये 2-4 महीने में एकदम परफेक्ट थॉटलेस चले जाओगे, अपने आप शांति आएंगे, ठहराव आएगा, और जो होना अच्छा ही होना है। फिर बहुत बार यार ये अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, ये अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रूट वही दिखेगा। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। टेंशन आ गया, आना तो नहीं चाहिए अभी, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अपन सिर्फ उतना टारगेट कर रहे हैं जितना आता उतना एक्यूरेटली सॉल्व करके वापस आना है, लेकिन फिर भी टेंशन आ गया। देन व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू? बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, बस आंखें बंद करना। कर लो आंखें बंद, एवरीबॉडी, सब लोग अपनी आंखें बंद करो, एकदम शांति से, कोई शर्माने की जरूरत नहीं, कोई नहीं देख रहा क्योंकि सबकी आंखें बंद है अभी। राइट नाउ टेक डीप ब्रेथ, नो डिस्कशन प्लीज। टेक डीप ब्रेथ, छोड़ दो, अगेन सांस लो, छोड़ दो, अगेन छोड़ दो, लास्टली अगेन छोड़ दो। बस 8-10 बार करो, तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल आ जाता, दैट इज मोर देन इनफ। राइट, सब एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और कोई शर्म मत करो, अपन तो बेस्ट है ना सेंटर पे। शर्म कब आती? जब अपन फील करते अपन बेस्ट नहीं है, अपन तो बेस्ट ही है, तो
भाई मेरे को नहीं मालूम, मेरे को टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, जितने आते उतने एक्यूरेट सॉल्व करने के आगे, बाकी मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। उसको बोलते फील दैट यू आर द बेस्ट। अरे तेरे को तो यार, उसको तो 300 मार्क आते, तेरे को तो 100 ही आता, बस 100 मार्क के लिए मैं बेस्ट हूँ। मेरे को थोड़ा ना 300 वाले से कंपेयर करना है, वो मेरा टॉप रैंकर देख लेंगे उसको। फाइनल स्ट्रिक्टली फॉलो स्किपिंग, स्किपनी वालों तो 45 मिनट साइकिल, किसी कोई 50 मिनट साइकिल फॉलो करेगा, कोई 40 मिनट साइकिल फॉलो करेगा, कोई 35 मिनट साइकिल फॉलो का, जितने क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो द साइकिल्स, स्ट्रिक्टली फॉलो द क्रॉस चेकिंग राइट फ्रॉम टुडे, एंड ओनली टारगेट इज सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू आर 100% कॉन्फिडेंट। राइट फ्रॉम टुडे स्टार्ट बिहेविंग लाइक यू आर द बेस्ट। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट, मैंने बोला था आखिरी में मैं 20 मार्क वाले की सक्सेस जर्नी बताऊंगा। ऐसे ही 20 मार्क ले रहे कैट में, आरटी में, सब तरफ। अरे 20 मार्क के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन लगते हैं। अगर ये बंदे ने ये सोचा कि भैया मैं 6 या 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, पूरे एक्यूरेटली अटेम्प्ट करता, तो शायद ये 28 पे पहुंच जाए। अपने को हमेशा कम लगता है, तो हमको ये ध्यान में लेना पड़ेगा 0 मार्क्स से कम लेने वाले 20-30% लोग रहते हैं, तो हमको 20-28 चलता। बाद में क्या होता है, जब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, ये 15-20 मार्क बढ़ा लेता, तो ये 20 मार्क का जाता 40 मार्क पे। और इसलिए 40 मार्क भी उसने, यानी 10 क्वेश्चन, सिर्फ 10 क्वेश्चन अगर उसने जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, तो इट इज मोर देन इनफ। बाद में ये जाता बोर्ड की तरफ। बोर्ड के बाद ये बंदा आता है MSTCT के लिए, तो उसको कितने मार्क मिल रहे थे, उसको पहले मिल रहे थे कैट आरटी में 20 मार्क, रिवीजन वगैरह सब परफेक्ट करने के बाद, एक्यूरेसी करने के बाद, ये पूरे टेक्निक्स फॉलो करने के बाद ये पहुंच गया 40 मार्क पे। क्योंकि कल से जब वो एग्जाम में जा रहा, तो यही सोच रहा भैया 10 हो गए, राइट हो गए, तो मोर देन इनफ है। पहले तकलीफ जाएंगी उसको कि ये बबल शीट 10 ही भरे, बबल 10 ही भरे, पहले तकलीफ जाएंगी। बाद में वो बोलेंगे वैसे भी 11वां आता नहीं तो काय को करूं। 40 मार्क लेके जब वो MSTCT पेपर देगा, तो उधर तो स्टेप 3 भी नहीं है, उधर तो स्टेप 2 ही है, एकदम ही सिंपल है। तो वो इसके हो जाते हैं उसके 50-60 मार्क पे MSTCT पे पहुंच जाता। आप बोलोगे कम है, मार्क्स कितने होने चाहिए, 90-100 मिनिमम उतने तो होने चाहिए। टॉपर तो अपना 200 में से 200 भी ले लेगा। पिछले 7 साल से महाराष्ट्र का फर्स्ट टॉपर है आईकैट का बंदा, पिछले 7 साल से हर साल। अब इसको मिले 60, अब कैसे बढ़ाएगा स्कोर, तुक्के मार सकता नहीं है। MSTCT है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बंदा क्या करता है, हर वो क्वेश्चन ढूंढता है जिसमें वो आता, वो क्रॉस चेक करके वो 60 करता, परफेक्ट। अब बचा उसको 140 मार्क का नहीं आता, यानी उसको कितने मिल सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है राइट होने की, 1/4 ना, मल्टीप्लाई बाय 140, 35 मार्क और मिलते इसको। कितने हो गए, 60 + 35 95, इतने चाहिए थे ना अपने को। ये बत्ता बाद में इंजीनियरिंग करता। थोड़ा और एक प्रिकॉशन दे दूँ, आप लोग सब लोग MSTCT भी देने वाले हो, तो एक प्रिकॉशन दे दूँ। पहला क्वेश्चन अगर आता है और आंसर A है, तो मैं बिल्कुल क्रॉस चेक करके उसको A मार्क करता हूँ, क्योंकि मेरे को क्रॉस चेक करने की तो आदत ही है अभी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर D है, तो मैं फिर से उसको क्रॉस चेक करके D। थर्ड क्वेश्चन मुझे आता नहीं, देन सपोज आई मार्क C, परफेक्ट। चौथा क्वेश्चन आगे आंसर B है, मैंने मार्क किया B। अब पांचवा क्वेश्चन फिर से मुझे आया नहीं, तो मैंने कौन सा मार्क करना चाहिए, मैंने थर्ड क्वेश्चन मुझे आया नहीं, तो आई मार्क इट एज C। और फिफ्थ क्वेश्चन अभी आया नहीं, तो क्या मार्क करूंगा, A B D, आई हैव टू मार्क इट एज C ओनली। छठवां नहीं है फिर से C, आठवां नहीं है C, 10वां नहीं है C, 12वां नहीं है C, 15वां नहीं है C, तभी वो 1/4 की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो CT पेपर जाने के पहले यही सोच के जाना, मेरा लेटर A रहेंगे या D रहेंगे या B रहेंगे या C रहना, बस उसी पे स्टिक रहना है। अब सक्सेस जर्नी पे आते हैं। अब यह बंदा 20 पे 40 पे पहुंचा, 40 से 60 पे MSTCT पहुंचा, तुक्के मार के 90 पे पहुंचा, कोई ना कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको कंप्यूटर साइंस मिला। इसको एक लड़की है जिसने डेटा साइंस लिया। आज ये लड़की को ग्रेजुएट होके 5 साल हो गए, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया बैंगलोर में। हमारे रिलेटिव की लड़की है, इसलिए ज़्यादा मालूम रहता है, टू बी वेरी फ्रैंक, सगे मामा की लड़की है मेरे। तो उसको पैकेज मिला 25 लाख का बैंगलोर में। शी इज़ नाउ 25 लाख, शी इज़ अर्निंग 25 लाख आफ्टर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। और थोड़ा 1 आध महीने पहले मामा का फ़ोन है कि वैदे इज ट्राइंग टू शिफ्ट हर जॉब। कितना टारगेट कर रही है, 35 तो मिल जाना चाहिए। मन में सोचा मामा थोड़ा औकात के बाहर नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली इट इज हैपनिंग।
वो क्या होता है, वो जेई करिकुलम में आते हैं, इतना 2 साल का करिकुलम कंप्लीट किया, रोज काम करने की आदत लग गई, भले ही 20 मिला, बाद में 40 मिला, बाद में 60 किया, बाद में 90-95 पे गए। साहिल जो पहले उसका भी एग्जाम्पल डिस्कस किया गया था, उसका भी 40-45 मार्क मिले। ही इज एन एसेंचुअर एंड अर्निंग द पैकेज ऑफ 22 लाख, शी इज अर्निंग द पैकेज ऑफ 25, अब 35 पे शिफ्ट कर रही है। आप भी जब वो जॉब में जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, तो आपको पहले लगेगा, जब तक अब लगेगा आपको फेंक रहे सर, बाद में बोलेंगे यार, जब वो कॉर्पोरेट में जाओगे बाद में बोलेंगे यार इजी है, 4-5 साल में मैं भी पहुंच जाऊंगा। ये मैं 20-25 मार्क्स के। फिर टॉप रैंकर कहा जाते हैं, ये IIT अपन जो इतना प्रमोट करते हैं, टॉपर्स को प्रमोट करते हैं, ये कहा जाते हैं। 2017 टॉप रैंकर जिसको मैं बात कर रहा था, 296 आउट ऑफ 300, ऑल इंडिया रैंक 102, उसका भी स्टोरी है। अगर उसको वही सेक्शन में कम मार्क मिले जो इजी था, इसलिए जेईई मेन भी सीरियसली लेना पड़ता है। उसका ऑल इंडिया रैंक 102। IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस, ही गॉट एडमिशन इन 2017। 2021 ही पास्ड आउट, राइट। 2024 कितने साल का जॉब एक्सपीरियंस? 3 साल का। पैकेज क्या होगा? 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। दिस पैकेज इज वुपिंग 3.5 करोड़ लास्ट ईयर। और अभी जब नवंबर में वो मिलने आया था, he is switching his job because he is getting the job offer of 5 करोड़ per annum, 3 साल। This is the industry potential। अब आपको लग रहा होगा ये जो है ना बिल्कुल 20, 40, 60 और 90 पे पहुंचा, ये भी यार 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हो जाता क्योंकि ये 5 करोड़ ले रहा। Got the point everybody? Right? So now you can really feel that everybody over here is at least getting 20 or 40 marks and above. You can always feel that you are the best. Just try that कि you are giving your best shot at the examination। और जितने आते हैं भले 60 मार्क का है, पूरा राइट करके आएंगे आज से ही। So that's all from me guys, right? Thank you very much। So all the best, Rucha, please take over। Thank you, sir. I request now students can have a question answer session. Any student interested to ask question can raise the hand, please. Anybody? Yeah, here there is a question, please। गुड मॉर्निंग सर। Yeah। माय क्वेश्चन इज, एग्ज़ाम में जाते हैं तो रफ शीट्स कितने मिलते हैं एंड लिमिट कितनी होती है पेपर्स लेने की, एंड हमें कितने मतलब हर क्वेश्चन को इलेबोरेटली सॉल्व करना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि हमें आदत है अभी की 5-6 शीट हम ले ही लेते हैं या उससे भी ज़्यादा। किशोर सर, यू आर हैविंग एनी आंसर ओवर देयर? A4 साइज के सर का कहना है 4-5 शीट्स हमको मिलते हैं, तो उतनी प्रैक्टिस करेंगे अपन। गुड। सो नाइस क्वेश्चन ओवर देयर। एनी अदर क्वेश्चन दैट इज कमिंग अप? Can we have anybody from residential? रेसिडेंशियल के एक बच्चे का किस्सा बताता हूँ, जिसने जेईई मेन में शायद 60-70 मार्क ही लिए होंगे, मिस्टर जतिन वहाने। और अभी ही इज़ वर्किंग विथ इसरो, और उसकी कंपनी इसरो के साथ काम कर रही है। तो बोले रीयूजेबल रॉकेट बना रहा हूँ एंड ही इज़ द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैंने उसको सिंपल पूछ लिया, भाई रीयूजेबल रॉकेट तो इलॉन मस्क ने बनाया। सर उसकी स्टेज डिफरेंट है, मैं एक स्टेज पहले की बात कर रहा हूँ, मैं और एक स्टेज बचाऊँगा एंड 2027 प्रोजेक्ट कंप्लीशन होगा एंड लेट्स सी। 20 मार्क वाले की बात बोल रहा था कि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपने अमेरिका जाते बाद में पढ़ने के लिए। तो अमित शर्मा सर, मैं इस सेंटर पे गया, सर बोले अपने तो लास्ट बैच के बच्चे भी मेरे फेसबुक में फ्रेंड है तो अमेरिका में दिखते। तो मैं बोला फिर क्या? बोला लास्ट बैच के बच्चे हैं लेकिन वो आईकैड के बच्चे हैं ना, तो अमेरिका में क्या, सिंगापुर में दिखेंगे, स्विट्ज़रलैंड में क्या, कहीं भी दिखेंगे वो। लेकिन अपने को क्या लगता है कि स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त स्विट्ज़रलैंड में, विपिन धानोरकर फ्रॉम वरोरा, वो क्या बोल रहा है, यार मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अभी ना इंडिया में वापस। बोले क्यों? पूरी यहाँ की पढ़ाई बहुत ही सिंपल है। और ही शिफ्टेड टू इंडिया, अभी बायोकॉन में, बेंगलोर में, क्योंकि बोले यहाँ की पढ़ाई में अगर मैं अपने बच्चों को रखूँगा तो बच्चे तो अगले चैलेंजेस ले ही नहीं पाएंगे। अपने बच्चे जब अमेरिका जाते वक्त ऐसा लगता है यार ये अपने इतने टॉप रैंकर्स देखे और ये बच्चा अभी अमेरिका जा रहा है, ये करेंगे क्या वहाँ जाके। फिर योगेश नाम का लड़का गया, मैंने तो 3000 से ज़्यादा लड़के अमेरिका भेजे। जाते वक्त ऐसा लगा कि यार ये 2 साल बाद वापस आएगा, शायद उसको जॉब नहीं मिलेगा। वो 5-6 साल बाद मिला, शादी थी, इनविटेशन देने आया था। नॉर्मली बहुत कम बार होता है लेकिन आया था। तो हमने डरते डरते पूछा, मैं और मेरा भाई राहुल दोनों ने डरते डरते पूछा उसको, यार तू इंडिया में है कि अमेरिका में?
सर बोले आपने तो अमेरिका भेजा। अरे हो, अब उसको क्या बोलेंगे, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 साल बाद वापस आएगा, जॉब नहीं मिलने वाला तेरे को। नहीं सर बोले मैं पिछले 6 साल से अमेरिका में हूँ, आई एम डूइंग फंटास्टिकली वेल, घर ले लिया, गाड़ी ले लिया। मैं बोला यार क्लियर बताओ क्या, हमको तो ये लगा था कि तू वहाँ सस्टेन होगा कि नहीं। नहीं बोले अमेरिकन को कुछ नहीं आता सर। बोले और ये मतलब एक्सपीरियंस बता, तो एक्सपीरियंस उसने शेयर किया कि बहुत बार ऐसे अमेरिका क्वेश्चन पूछे जाते, अमेरिकन ऐसे डम सामान बैठे रहते थे और हम सोचते थे इनको इतना भी नहीं आता। सो द थिंग इज कि हम ये सोचते हैं, मैं बोला ना यहाँ पे, मैं सेशन के पहले ही बोला, यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हैं वो सब सक्सेसफुल होने वाले हैं, वो नीट का हो या जेई का हो। नीट का बंदा डॉक्टर बनेगा या अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनेगा या तो अच्छा फार्मासिस्ट बनेगा, और फार्मेसी में भी जाएगा तो जी पैट का टॉप स्कोरर लेके आएगा, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू द जेई और नीट प्रोग्राम, राइट, एंड सिंसियरली यू हैव गॉन थ्रू दैट। सो आई विश ऑल ऑफ यू ओवर हियर ऑल द बेस्ट। लिंक्डइन में बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है और मुझे मालूम है सब लोगों की प्रोफाइल मुझे 5-6 साल बाद लिंक्डइन में मिलने वाले हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you, sir, for your guiding lines. We all are inspired by your valuable thoughts. Reminding everyone that great journey begins with a single step. Take it with confidence and success will follow. Remind yourself, as sir said, you are the best. We all know that it won't be easy, but we also know that you are up to the challenge. Best of luck for your future endeavors. Thank you. Thank you all teaching staff and non-teaching staff for being here, and thank you all students for attending the session. Thank you.